বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। নমস্কার, বাংলা বলছি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে পাকিস্তানি জঙ্গিরা, ধর্ম জেনে, তারা হিন্দু না মুসলিম সেই ধর্ম জেনে ঠান্ডা মাথায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর্যটকদের গুলি করে খুন করা হয়েছে। 25 জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় পুরুষ নিহত হয়েছেন, মোট 26 জন। এবং তারপর এই তারা জঙ্গিরা যেভাবে মহিলাদের বলছেন যে মোদিকে গিয়ে বলুন, যখন তারা কাতর আর্জি জানাচ্ছেন যে আমাকেও মেরে দিন, আমার স্বামীকে মেরে দিলেন, আমাদেরও মেরে দিন, তখন তারা বলছে যে মোদিকে গিয়ে বলুন, অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন পাকিস্তানি জঙ্গিরা। এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যে তিনি বলেছেন এই হামলা শুধুমাত্র নিহত পর্যটকদের উপর হামলা নয়, দেশের শত্রুরা ভারতের আত্মার উপর হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমি একে পরিষ্কার বলে দিতে চাই, যারা এই হামলা চালিয়েছে সেই সব সন্ত্রাসবাদীদের আর হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের তাদের এমন শাস্তি দেয়া হবে তা তাদের কল্পনারও বাইরে। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে শাস্তি দেওয়া হবে তা কল্পনারও বাইরে। আর প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পরেই শুরু হয়েছে প্রত্যাঘাত। প্রশ্ন এখানে, রাজস্থানে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় সেনা, তাহলে কি ফের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে নামছে ভারতীয় সেনা? জয়পুরে সপ্তশক্তি কামান নিয়ে রাজস্থানের থর মরুভূমিতে পাক বর্ডারের কাছে যুদ্ধের প্রস্তুতি ভারতীয় সেনার, সেটা যেমন একদিকে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ভারতীয় বায়ুসেনা শুরু করলো, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এক বৃহৎ সামরিক মহড়া শুরু করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে আক্রমণ। সেই আক্রমণের এই নাম থেকেই পরিষ্কার যে এই মহড়ার উদ্দেশ্যটা কি বা বিধেয়টাই বা কি। আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুরাত থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করেছে নৌসেনা। সমুদ্রে নামানো হয়েছে যুদ্ধ বিমান বহনকারী যুদ্ধ জাহাজ আইএনএস বিক্রান্তকে। পাকিস্তানের সীমা অতিক্রম করেই কি স্ট্রাইক হবে এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মাধ্যমে? দেশে যেভাবে প্রতিটা রাজ্যে প্রতিটা ভারতবাসীর রক্ত যেভাবে টকবক করে ফুটছে, বদলা চাই, আর সেই বদলাই কি শুরু হয়ে গেল? পাকিস্তানকে চিহ্নিত করে, পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠান করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই বার্তা দিয়েছেন যে প্রতিটা পাকিস্তানিকে চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠান। ইতিমধ্যেই সমস্ত পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর হয়তো দুদিন 27 তারিখের মধ্যে সমস্ত পাকিস্তানিকে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে ফের কি প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তা, তাহলে কি ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে নামছে ভারত? এই জায়গাটা যেমন একটা প্রশ্ন, তেমন অন্যদিকে প্রশ্ন। কাশ্মীরের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, পর্যটন তাদের বলা যায় রুটি রুচি। সে পর্যটনে বিরাট ধাক্কা, বহু মানুষ পর্যটক আবার কি কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? কারণ করোনার পরে এই বছর প্রচুর পর্যটক সেখানে যাচ্ছিলেন, হোটেলগুলো প্রায় সব জায়গাতেই ভর্তি হয়ে গেছিল। বিভিন্ন জায়গায় কাশ্মীরের যে মানুষ তাদের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটছিল, কিন্তু সেই হাসি কোথাও যেন ধাক্কা খেলো এই আক্রমণের ফলে, জঙ্গি হানায়। এখন কি বলছেন কাশ্মীরের মানুষরা? আজ রাহুল গান্ধী গেছেন সেখানে, শ্রীনগরে গেছেন রাহুল গান্ধী, সেখানে মিটিং করেছেন, পরিস্থিতি দেখেছেন। এর আগের দিন সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য সকলেই। 3 বাহিনীকে নিয়ে মিটিং করেছেন রাজনাথ সিং। এই পরিস্থিতিতে
কাশ্মীরের মানুষ কি বলছেন, তারা কি যুদ্ধ চান, তারা কি চান? পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবার কি ফিরিয়ে নেওয়া হবে? কি বলছেন কাশ্মীরের মানুষ? আমাদের প্রতিনিধি আহমেদ বাসির সেখানে রয়েছেন। তিনি আজকে যে রাহুল গান্ধী গেছেন, তারপর সেখানে কি পরিস্থিতি, কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, মিটিং করেছেন, সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রতিনিধি আহমেদ বাসির একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জামির পণ্ডিত, যিনি হচ্ছেন ইনচার্জ, অ্যাসেম্বলি ইনচার্জ, অর্থাৎ সমস্ত অ্যাসেম্বলি ইনচার্জ শ্রীনগর এবং ডিস্ট্রিক্ট ইউথ প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ জেলা যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জামির পণ্ডিত, তার একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। কি চায় সাধারণ মানুষ, তারা কি চায়, সেটা আমাদের প্রতিনিধি সেই ইন্টারভিউ দেখুন, সেই সাক্ষাৎকার। तो अभी हम बात करेंगे जो कि रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, जो कि एक दरिंदाना हमला था। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है। आइए हम उनसे उस हवाले से बात करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे ओनकार न्यूज में। आप हमें बता दीजिए जो कि ये अभी रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ, जी, क्या कश्मीरी इससे खुश है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया अपनी चैनल पर। और जो आपने अपनी चैनल के माध्यम से मुझे सवाल पूछा है कि क्या कश्मीरी खुश है इस, अगर हम वॉर चाहते हैं, क्या वॉर के साथ कश्मीरी खड़े हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। मैं ये चीज मानता हूं कि मुझे लगता है कि जो हादसा अभी पहलगाम में हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे टूरिस्ट जिनकी जानें चली गई है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को है वो यहाँ के जो हमारे कश्मीर के नेटिव लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का है क्योंकि हमारी सरजमीन पे ये हादसा, ये चीज हुई जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहता, जिसकी हम अब कड़े अल्फाजों में जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये बदकिस्मती है, मुझे लगता है ये जो दरिंदानी हरकत थी, उन दरिंदों ने वो हमला टूरिस्ट पे नहीं बल्कि कश्मीरियों के दिलों पे कर दिया है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जहां तक हमने देखा, तो जिस दिन ये हादसा हुआ किसी कश्मीरी ने खाना नहीं खाया होगा रात के टाइम, क्योंकि सारा कश्मीर जो था वो एक ऐसा मंजर हमारे कश्मीर में उस टाइम था कि सबों के दिल रो रहे थे और हमारे जो जज्बात थे वो टूट चुके थे, क्योंकि हमारे टूरिस्ट भाई जो है उनकी जाने गई, जो कि एक कश्मीरी अपने आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं, हम मेहमान नवाजी पे यकीन रखते हैं, अमन पे यकीन रखते हैं और भाईचारे पे यकीन रखते हैं। क्या कश्मीरी अवाम जंग चाहती है? देखिए, मुझे लगता है अगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर अब ये जंग का सोच रहे हैं, चाहे ये पाकिस्तान के साथ अगर ये जंग करेंगे तो बीच में एक पिसेगा कश्मीरी, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि कश्मीर को एक बैटल फील्ड बनाया जाए। क्योंकि कॉमन सेंस की अगर हम कल रात का भी देखेंगे तो रात भर जो वायुसेना, हमारी इंडिया की वायुसेना थी, उनके जो ये जंगी जहाज थे, फाइटर जेट्स थे, वो रात भर गश्त कर रहे थे हमारी एयर स्पेस में। उनकी वो LOC के नजदीक तक जाते थे, फिर शायद वापस आते। रात कहीं 2-2:30 बजे तक उनकी आवाजें गूंज रही थी पूरी वादी में, पूरी कश्मीर में गूंज रही थी कि एक एक्सरसाइज कर रहे थे वो शायद मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूं कि हम कश्मीर को एक बैटलफील्ड बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे और कश्मीरी कभी वॉर के साथ था ही नहीं। हम अमन पे यकीन रखते हैं, हम भाईचारे पे यकीन रखते हैं, हम दोस्ती पे यकीन रखते हैं। बस मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी कश्मीरी जंग चाहता है ऐसा हर जैसे अभी बताते हैं हम आपको कि कश्मीरी तो अमन चाहता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अभी जिस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पे वहां पे IF रेडी है, वहां पे फौज रेडी है, क्या ये सब वजीर आजम के रास्ते पे पैगाम के बाद ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे ये हमारा जो पहलगाम का हादसा हुआ उसके बाद जो एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद कुछ फैसले ऐसे थे कि जिसमें आपने भी सुना होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो इंडस का पानी वो पाकिस्तान के लिए बंद किया जाएगा, जो हमारा वाघा अटारी बॉर्डर है उसको बंद किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट अभी हमारी कंट्री में है
वो 1 मई तक वो यहाँ से चले जाए, और जो हमारी हाई कमीशन हमारे पाकिस्तान में है उनको वापस बुलाया गया, और जो यहाँ पे पाकिस्तान की हाई कमीशन है उनको वापस जाने के लिए कहा। ऐसा मंजर दिख रहा है कि जैसे अभी बॉर्डर्स पे भी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें या हमारी एलओसी की बात करें, ऐसा लग रहा है कि एक फिजा बन रही है, एक माहौल बन रहा है जंग का। ऐसे दिखने में हमें भी लग रहा है। शायद हम भी हिंदू जो इंडिया है, अपनी हमारा जो मुल्क है अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इस चीज को लाइटली नहीं लेगा, वो भी अपनी ओर से तैयारियां कर रही होंगी। शायद मुझे लगता है कि एक बैटल, एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि वॉर, ऐसा दिखता है कि आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से वजीर आजम जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और उसमें उन्होंने ये वाज़ह तौर पे बताया कि इंडस रिवर बंद किया, उसके साथ साथ में जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में है उनकी शिनाख्त करके उनको वाघा बॉर्डर बंद कर, अतारी बॉर्डर बंद किया, उनको वापस भेज दो। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जंग की सूरत है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे भी लग रहा है कि ऐसे की जंग की सूरत बन रही है, लेकिन देखा जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में ये शायद ये जो हमारी तस्वीरें पूरी साफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि कल रात जो हमारी वायुसेना है वो कश्मीर की वादियों में एयर स्पेस में पूरा गश्त कर रही थी लगभग 2:30 बजे 3 बजे के, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी शायद परेशान थे कि शायद जंग स्टार्ट हो चुकी है, कल सुबह जब हम उठेंगे तो पता नहीं कौन सा मंजर देखने को मिलेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जहां से मुझे इंडियन फोर्सेस की तैयारी लग रही है, जो इंडियन आर्मीज की, चाहे नेवी हो या हमारी वायुसेना हो, एयरफोर्स हो, जिस तरह से वो अभी अपनी तैयारी में लगे हुए, मुझे भी लग रहा है कि एक जंग की सूरत बन सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम कश्मीरी ये चाहेंगे कि हमारे इस जो कश्मीर है ये बैटलफील्ड ना बने। हम नहीं चाहते कि मासूम जो हमारे यहाँ लोग हैं इनका खून बहे। हम नहीं चाहते कि और जो चाहे कश्मीरी हो, चाहे मतलब हिंदुस्तान में कोई भी हो, चाहे वहां से चाहे यहाँ से, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मासूम लोगों की जाने जाए। इसमें बात करेंगे अभी आज के जो अचानक से राहुल जी का ये दौरा हुआ कश्मीर के लिए, वही साफ साफ दिख रहा है कि वो भी पहलगांव के, जो पहलगांव में ये इंसिडेंट वाकया हुआ उसके लिए उन्होंने यहाँ पे वो आके उन्होंने क्या रिएक्शन दी जो परसों से हो रहा था? देखिए, राहुल गांधी की जो आज यहाँ पे विजिट थी, वो जो हमारे कुछ इंजर्ड जो हमारे भाई थे जो पहलगाम के इंसिडेंट में हुए थे, जो बेबी कैंप में थे अभी, और कुछ ऐसे इंजर्ड थे जो वापस भी गए अपने घर, लेकिन कुछ इंजर्ड जो वहां पे थे, राहुल जी हमारे वहां आए, उनसे हाल चाल पूछा, उनका सुना, और उसके बाद उन्होंने सीएम हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है उनसे मुलाकात की, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे मुलाकात की, और इस जो सिचुएशन थी इसका जायजा लिया। और उन्होंने और जो कश्मीरी है, हम जितने भी बहुत सारे फेडरेशन आए थे राहुल जी से मिलने के लिए, और ये बताया कि जो अभी एक हमारी कंट्री में माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे कश्मीरी स्टूडेंट जहां भी पढ़ रहे हैं वो उनको वहां हरास किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो उस बारे में एलओपी साहब जो हमारे राहुल जी उनसे बात होगी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो यहां से जाके गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसको हिंदू और मुस्लिम का आप ये मत बनाइए कि हमारी जो कंट्री ये ऐसे हिंदू और मुस्लिम में बढ़ जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहां से जाके वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनसे बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि जहां भी कश्मीर है वो वहां सेफ रहे, उनकी जान पे कोई आंच ना आए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को। आज क्या मैसेज रहेगी आपको कश्मीरी या अपने देशवासियों के लिए कि जैसे वो अभी जज्बातों में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताओगे? देखिए, हमारी मैसेज मैं हमेशा वो ये, हमारी जो कंट्री है एक सेक्युलर कंट्री है। मेहरबानी करके जो हम सेक्युलर, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इस भाईचारों को खत्म ना करें। मुझे लगता है, मुझे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है हमारी कहीं ऐसी न्यूज चैनल, मैं सबका नाम नहीं बता सकता हूँ, कहीं ऐसी न्यूज चैनल जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, जिन्होंने इस हादसे को एक हिंदू और मुस्लिम का रूप दे दिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला, जो कश्मीरी लोग चाहे बिजनेस के पर्पज से या स्टडी के पर्पज से हमारे दूसरे स्टेट्स में अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें वहां हरास किया जा रहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि कश्मीरी के दिल में जो बाकी स्टेट्स के लोग उनके लिए नफरत पैदा हो? बिल्कुल, इस आप अमन को मत खराब करिए, अपने भाईचारे को खराब मत करिए, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों के बयानों की वजह से ये अब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये लोग ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं लोगों में, कि ये फेक वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिससे ये पता चल रहा है कि
कश्मीरी को वहां मारा गया, कश्मीरी जो कि ओल्ड वीडियो, पुरानी वीडियोस डाल डाल के लोगों में एक इंतशार फैला रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से, सभी हिंदुस्तान के वासियों से है, प्लीज मेहरबानी करके ऐसा बिल्कुल ना करें। हम आपस में भाई भाई है। एक कश्मीरी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे जो कंट्री में जो भी लोग हैं सब हम आपस में भाई है, किसी का भी नुकसान हो, हमने कभी ऐसा नहीं चाहा है। मैंने अभी बोला जितना दुख इन टूरिस्ट की जानों का उन्हें नहीं होगा, उससे ज्यादा कि हम कश्मीरी का होगा। मैंने अभी बोला कि हम भाईचारे पे यकीन करते हैं, अमन पे यकीन करते हैं। बस ये हमारी मैसेज रहेगी, प्लीज आपस में एकजुट होकर रहिए। अभी थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ समीर पंडित, जो कि कश्मीर से कांग्रेस के युवा नेता है, और इनका भी ये कहना है कि जो भी यहाँ पे हुआ है तो उसके लिए ये भी शर्मिंदा है।